یہ کہانی جن خاتون کی ہے میں انہی کی زبانی شیئر کر رہی ہوں۔ آپ بھی اپنی زندگی کی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا نام ماہین ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کبھی میری شادی ایک ایسے انسان سے ہو جائے گی۔ میری ماں شادی کے 2 سال بعد ہی 20 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ میں تب 1 سال کی تھی۔ امی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سبھی رشتے داروں نے ان سے کہا کہ تم ابھی کم عمر ہو، تمہارے آگے ابھی ایک عمر پڑی ہے، مرد کے بغیر زندگی گزارنا بڑا ہی مشکل ہے، اس لیے تم شادی کر لو، تمہارا باپ بیچارہ بوڑھا ہے اور یوں تم کب تک اس ضعیف کے کندھوں کا بوجھ بنو گی۔ امی راضی تو نہ تھی، کہتی کہ میرے ساتھ میری معصوم بچی بھی ہے، میں خود محنت کر کے اسے پال لوں گی، مگر اس کو ستیلے رشتوں کی آگ میں نہ جھونکوں گی۔ کہتی ہے کہ بیوہ کی جوانی اور جاڑے کی چاندنی بے زبان ہونے کے باوجود کشش رکھتی ہے۔ میری ماں کی طرح زمان خان کی زندگی بھی بے جان جاڑے کی چاندنی جیسی ہی تھی۔ بیوی کے انتقال کے بعد وہ بھی تنہا اور سر زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ تبھی میرے باپ کی ناگہانی موت نے اس کے دل کو اس قدر گداز کر دیا کہ وہ رات دن نانا کی خدمت گزاری کرنے لگا۔ زمان خان رشتے میں میرے نانا کا دور پرے کا بھتیجا تھا، مگر گھر کے نزدیک ہونے کے باعث اپنوں سے بھی زیادہ دل کے قریب تھا۔ میری نانا کی میری والدہ کے علاوہ کوئی اولاد رحیمہ نہ تھی اور زمان خان ان کی اس قدر دیکھ بھال کرتا کہ ان کے دل سے بیٹے کی محرومی کی خلش کو مٹا دی۔ زمان خان کا مکان ہمارے نانا کے مکان سے جڑا تھا۔ قدیم پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے باخبر رہتے تھے۔ نانا جان کو یہ رشتہ مناسب لگا، لہٰذا انہوں نے بیٹی کا رشتہ زمان خان سے طے کر دیا۔ میں سال بھر کی تھی جب باپ کی شفقت سے محروم ہوئی تھی اور 4 برس کی تھی جب ایک روز ماں کی دوسرا شادی کی گہما گہمی کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر میں بھی اس گہما گہمی میں نئے کپڑے پہن کر شامل ہو گئی۔ کچھ رشتہ دار عورتوں نے میری امی کو نیا جوڑا پہنا کر سجایا تھا اور یوں بنی سوری مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں خوب تیار ہو کر آنگن میں مسرور تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ مجھ کو تو بس اتنا ہی محلے کی کچھ لڑکیوں اور عورتوں نے بتایا کہ تیری ماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔ میری ماں کی شادی زمان خان سے ہو گئی اور مجھ کو بھی باپ کا گھر مل گیا۔ ہم نانا کے گھر سے برابر والے گھر میں منتقل ہو گئے۔ اب تو نانی بھی خوش تھی کہ اتنا اچھا داماد ملا تھا، بیٹی کو بھی خوش رکھتا ہے اور نواسی کو بھی بالکل باپ سا پیار دیتا ہے۔ دن سکون سے گزرنے لگے۔ میری ماں بھی اب ہنسنے مسکرانے لگی، جیسے وہ بیوگی کا غم بھولنے لگی تھی۔ پاس پڑوس کی عورتیں بھی آ کر ان کا دل بڑھاتی، مگر سبھی عورتیں ایک سی نہیں ہوتی، کچھ بد فطرت سے مجبور ہوتی ہیں اور اچھے مناظر میں بھی گندے نالے تلاش کر لیتی ہیں۔ جو مجھ کو سمجھ آتی جا رہی تھی وہ میرے کانوں میں بھی طرح طرح کی باتیں ڈال جاتی تھی۔ کوئی کہتی ہائے پیاری بچی، اس نے تو اپنے سگے باپ کا پیار بھی نہیں دیکھا، ہوش سنبھالا تو ستیلا باپ ہی نظر آیا۔ دوسری لقمہ دیتی، مگر سنا ہے وہ اس کو پیار بڑا کرتا ہے، لیکن سبیہا کو دیکھو، وہ تو نئی زندگی میں ایسے رنگ گئی ہے، اس بچی کے سگے باپ کو تو کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کرتی، کتنی خوش ہے وہ دوسرا بیارہ چاہ کر۔ تب میں سوچتی کہ یہ عورتیں ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، میری ماں واقعی کتنی خود غرض ہے، نیا شوہر پا کر میرے باپ کو بھلا ہی دیا۔ ایک دن میں کبھی میرے باپ کا ذکر میرے سامنے نہیں کرتی تھی، ایسی سوچیں میرے دل میں عجیب سی خلش پیدا کرتی اور میں پریشان سی ہو جاتی۔ ان زہریلی سوچوں نے کم سنی میں ہی میرے سکون کو برباد کر دیا۔ میں ہر وقت چپ چپ رہتی، مگر جو وقت گزرتا گیا اپنے ستیلے باپ کے محبت بھرے سلوک نے میرے بچپن کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ ان کی محبت پا کر اب مجھے سگے باپ کے بارے میں سوچ ہی نہ آتی۔ ہوش سنبھالا تو زمان خان کو ہی باپ کے روپ میں دیکھا، ان کی باہوں میں جھولا جھولا، ان کے ساتھ دادا جی کی دکان سے روز بسکٹ، چاکلیٹس اور ٹافیاں لینے جاتی۔ وہ مجھے اچھے اچھے کھلونے اور گڑیا لا کر دیتے، کبھی مجھے نہ ڈانٹا اور نہ ہی گھرکا۔ پھر بھلا میں اس شخص کو کیوں یاد کرتی جس کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا؟ جب ماں ہی میرے سامنے ان کا ذکر نہ کرتی تھی تو مجھ کو اپنے سگے باپ کا خیال کیسے آتا؟ میری ساری معصوم خوشیاں اور خواہشیں تو ستیلے باپ سے ہی وابستہ ہو چکی تھی۔ بھلا کیوں پھر میں اس شفیق ہستی کے خلاف اپنے ذہن میں محاذ بنا لیتی؟ چند عرصے میں ہی مجھے زمانے کی مکاریاں سمجھ آنے لگی۔ مجھے اب ان عورتوں سے ہی نفرت ہو گئی جو میرے کانوں میں اس قسم کا زہر گھولتی تھیں۔ میں ان کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہ جاتی۔ جب زمان خان نے مجھے سگی بیٹی ہی سمجھا تو میں کیوں نہ ان کو اپنا سگا باپ مانتی؟ وہ مجھ سے پیار کرتے اور میں ان کا احترام کرتی تھی۔ اب اگر کوئی میرے سامنے ایسی ویسی بات منہ سے نکالتا تو میں اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ تب بھی ان لوگوں نے مجھ سے ہمدردیاں جتلانی چھوڑ دی۔ میری ماں دوسری شادی کے وقت جوان تھی، سو اللہ نے اوپر تلے 4 بیٹیاں اور دے دی اور میں اپنی گڑیا سی بہنوں میں
गिर कर और ज्यादा खुश रहने लगी। अब्बू का आंगन परियों से भर गया। वो सभी से बहुत प्यार करते थे, मगर बेटे की चाह भी कसरत बनती जा रही थी। तब नानी उनका दिल बहलाती, अरे भाई, जब तुम्हारे 5 दामाद आएंगे ना, तो 5 बेटे मिल जाएंगे। अल्लाह चाहेगा तो बेटा भी दे देगा। गम न करो बेटा। इन दिनों जिंदगी के रास्ते बड़े सीधे साधे थे। घर से स्कूल और स्कूल से घर, बस यही जिंदगी का रूप देखा था। दुनिया की अभी हवा न लगी। घर में छोटी बहनें थी, अकेलापन भी महसूस न होता था। खरामा खरामा वक्त की गाड़ी चलती जा रही थी, और मैं कॉलेज में सेकंड ईयर की तालबा थी। कभी सोचा भी न था कि मेरी जिंदगी आकर इस मोड़ पर रुक जाएगी। इन दिनों मैं अकल में भी कम थी, और माजी के बारे में सोचा, और न कभी मुस्तकबिल के बारे में गौर किया। जो कुछ था बस हाल था, और हाल में कोई कमी न महसूस हुई, सिवाय एक कमी के। कभी कभी सोचती थी कि ऐ काश मेरा भी कोई भाई होता। कॉलेज में लड़कियों को उनके भाई लेने और छोड़ने आते। वो लड़कियां अपने भाइयों के बारे में बातें भी करती थी। जी में हसरत आती, काश किसी को मैं भी भाई कहकर बुलाती। पहले मैं खुद ही कॉलेज आती जाती थी, फिर वालिद साहब ने वैन लगवा दी। एक रोज हमारा वैन ड्राइवर छुट्टी पर चला गया, और मुझे पैदल ही कॉलेज जाना पड़ा। रास्ते में 2-3 आवारा लड़के मेरे पीछे लग गए, और वो मुझ पर तरह तरह की आवाजें कसने लगे। मैं शदीद परेशानी के बाइस पसीना पसीना हो गई। मुझे पहली बार ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ था, और मैं बहुत रूहानी हो गई, शायद जोर जोर से रोने लगती। तभी सामने से मुझे एक नौजवान आता दिखाई दिया। उसने इन आवारा लड़कों को मेरे पीछे आते देखा, तो तेजी से मेरी जानिब आ गया और उनके साथ उलझने लगा। इतने में 2 और आदमी आ गए और उनको धमकाकर भगा दिया। वो नौजवान मुझसे कहने लगा, बहन जमाना खराब है, आप अकेली इस तरह मत निकला करें। उसने जो मुझे बहन कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उस नौजवान से अपनाई सी महसूस हुई। क्या वाकई भाई रहमत होते हैं, अल्लाह की नेमत होते हैं। तभी तो बहनें उन पर मान करती हैं। मैं उस नौजवान से इतना मुतासिर हुई कि उसको भाई बना लिया। बताया कि हम 5 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं। अल्लाह ने आज आपको बड़े भाई के रूप में भेज दिया है। उस नौजवान का नाम बुरहान था। उसने बताया कि वो करीबी शहर से यहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया है, और वो एमएस कर रहा है। यूनिवर्सिटी से कुछ फासले पर प्राइवेट हॉस्टल में रहता है। उस रोज उसने मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ा था, और रास्ते में ही उसका हॉस्टल था। चलते चलते उसने इशारे से मुझे अपने हॉस्टल दिखाया। उसने कहा, अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो तो चौकीदार को कहकर मुझे बुलवा सकती हैं। उसका हॉस्टल मेरे कॉलेज के नजदीक ही था। इन दिनों मैं भी नादान थी, ज्यादा समझ बूझ ना थी। उसने मुझसे छुट्टी का टाइम पूछा, तो मैंने उसे बता दिया। छुट्टी के वक्त वो कॉलेज के बाहर खड़ा था। उस रोज वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने भी आया। मैंने उसे अपना घर दिखाया। उसके बाद हमारा राब्ता रहने लगा। वो हमेशा मुझे बहन कहकर और बहुत तमीज से बात करता। मुझे अक्सर जमाने के बारे में खबरदार करता कि अपनी हिफाजत करना सीखो और किसी पर भरोसा नहीं करना। हमारे इर्द गिर्द बहुत से इंसान के रूप में हैवान सिर्फ लोग मौजूद हैं। मैं उसकी बातों से वाकई बहुत मुतासिर होती और उनको पल्लू बांध लेती। अब कभी जब पैदल जाना होता तो मैं हॉस्टल के पास ठहर कर चौकीदार से कहते कि बुरहान भाई है तो बुला दे, मैं उनकी बहन माहिर हूँ। अगर वो ऊपर मौजूद होते तो चौकीदार बुला लेता, और न कह देता कि यूनिवर्सिटी गए हुए हैं। इस तरह कभी कभी मुलाकात हो जाती, और हम सारा रास्ता बातें कर लेते। साल गुजर गया, और बुरहान भाई के सालाना इम्तिहान करीब आ गए, और अब वो अक्सर हॉस्टल में ही होते, इम्तिहान की तैयारी करते। और जब कभी गुजरते हुए मैं उन्हें बुलवाती तो वो आ जाते और कॉलेज तक मेरा साथ देते। अक्सर मुझे वापसी पर घर तक भी छोड़ जाते। मुझको बड़े भाई की ख्वाहिश थी, वो मेरी पूरी हो गई। उनको भी शायद मेरा बहन के रूप में साथ अच्छा लगता था। हमने इस मुकद्दस रिश्ते को जोड़ा, मगर ये मुकद्दस रिश्ता मजीद अरसा ना चल सका। बुरहान भाई क्योंकि इम्तिहान हो गए और वो अपने शहर चले गए, और उनकी तालीम का दौरानिया ख़त्म हो गया। हमारा राब्ता ख़त्म हो गया। मैं उनकी कमी को शदीद महसूस करती। 1 साल बाद बुरहान भाई एक रोज़ अचानक मुझे एक बुक शॉप पर मिल गए। मैं उन्हें देखकर खिल उठी, और वो भी बड़े खुश हुए। मैंने शिकवा किया कि कैसे भाई बने हैं, पलट कर कभी बहन की खबर ही न ली। वो कहने लगे, मेरी छोटी सी गुड़िया, मैं कैसे तुम्हारे घर मिलने आता। तुमने तो मुझे न कभी अपने घर वालों से मिलवाया और ना ही घर के अंदर बुलाया। जब मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे, तो उन्होंने बताया कि मेरी यहाँ जॉब लग गई है, और हाँ, अब तुम मेरे घर आ जा सकती हो क्योंकि मेरी शादी हो गई है। अब तुम्हारी भाभी भी मेरे घर पे होती है। क्या तुम अपनी भाभी से नहीं मिलोगी? मैंने उनको शादी की मुबारकबाद दी और कहा कि हाँ, मिलूंगी उनसे कभी। मैं अब अम्मी जान को आपके बारे में बताऊंगी, फिर उनके साथ ही आपके घर आऊंगी अपनी भाभी से मिलने। वो मुझसे इल्तिजाइया अंदाज में पूछने लगे कि अगर तुम कबूल करो तो क्या मैं तुम्हें यहाँ से चूड़ियाँ ले दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है
कि शादी पर भाई अपनी बहनों को चूड़ियां देते हैं। मैं शादी पर भी तुम्हें ना दे सका। नहीं, रहने दे, मैंने जवाब दिया। अगर मैं चूड़ियां घर लेकर जाऊंगी तो अम्मी से क्या कहूंगी? पहले मैं उनको बता दूं आपके बारे में, फिर चूड़ियां भी ले लूंगी। ये कहकर मैं घर आ गई। बुरहान भाई ने तो मेरा घर देखा था, मगर मैंने उनका घर नहीं देखा था। कई बार सोचा कि अम्मी को उनके बारे में बता दूं, मगर हमारे यहाँ भाई सिर्फ सगे रिश्तों को ही माना जाता है, या फिर कजन्स को कहा जा सकता था। किसी अनजान मर्द का भाई होना किसी दूसरी किस्म की सोच को जन्म देता था, और यूं इस किस्म के रिश्तों को मयूब समझा जाता। इसलिए मुझे डर भी लगा कि अगर अम्मी ने मुझे डांट दिया तब मैं क्या करूंगी। इस गोमगो में मैं उन्हें कुछ ना बता सकी। मैंने एफएससी पास कर ली और आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती थी। लिहाजा ये सोच कर ही चुप रही कि पहले यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत तो मिल जाए। ऐसा ना हो अम्मी ऐसी बातें सुनकर रुकावट डाल दे। बल आखिर मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। नई जिंदगी का नया रूप देखा। इन दिनों मैं बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद हमारी यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन था। फंक्शन खत्म हुआ, यूनिवर्सिटी से निकली तो बुरहान भाई मिल गए। वो अपनी बीवी को लेने आए थे। इनकी कजन इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और वही बुरहान भाई की बीवी को फंक्शन में साथ लाई थी। वो मुझे देखकर तपाक से मिले और अपनी बीवी से भी मिलवाया। उनकी बीवी काफी खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की लगी। वो भी मुझसे बहुत खुश दिली से मिली। उनकी बीवी और वो मुझसे इसरार करने लगे कि आज तो हमारे घर चलो। मैंने फिर इनकार किया कि अम्मी के साथ आऊंगी। बुरहान भाई बोले, हमारा घर ही देख लो, फिर अम्मी को लेकर भी आ जाना। मैंने थोड़ी देर सोचा कि ड्राइवर को मैंने शाम 4 बजे का वक्त दिया था और अभी 3 बजे थे, लिहाजा 1 घंटा बाकी था। सो मैं जाने को तैयार हो गई और उनकी गाड़ी में बैठ गई। उनका घर ज्यादा दूर न था। मैं वहाँ आधा घंटा बैठी। दोनों मियाँ बीवी ने मेरी खूब आवभगत की। चाय वगैरह के बाद मैंने घर जाने का कहा। भाभी कहने लगी, बुरहान आप ही माहिन को उसके घर छोड़ आए। बुरहान भाई मुझे घर छोड़ने आए। कहते हैं ना कि जब शामत आती है तो बताकर नहीं आती। जब बुरहान भाई ने मुझे घर के पास गाड़ी से उतारा तो इत्तेफाक से वालिद साहब ने देख लिया। जब वो घर पहुंचे तो मैं फंक्शन वाले लिबास में ही थी। वो गुस्से से मुझसे पूछने लगे कि किसके साथ आई हो तुम। जल्दी से मैं उनके खौफ से कोई वजाहत, कोई जवाब ही न बन पड़ा। मैंने कहा कि अपनी सहेली के साथ आई हूँ और वही मुझे घर तक छोड़ के गई है। उनकी तेवरी पर बल पड़ गए, क्योंकि वो देख चुके थे कि जिस गाड़ी से मैं उतरी थी उसको एक नौजवान गाड़ी चला रहा था, और उस गाड़ी में उसके अलावा कोई औरत या लड़की मौजूद नहीं थी। वो कहने लगे, मुझे तुमने क्या बेवकूफ समझा है? झूठ बोलती हो तुम। मैं उनके गुस्से से बौखला कर रह गई। अब उसके सिवा कोई चारा न था कि मैं उन्हें सच बता दूं। मैंने रोते हुए कहा कि मैं अपने भाई के साथ आई हूँ। भाई के साथ? कि तुम्हारा भाई कहाँ से आ गया? मैं क्या जवाब देती? हिम्मत करके मैंने कहा कि वो मेरा मुंह बोला भाई है। बकवास मत करो। वालिद साहब का चेहरा गुस्से से और सुर्ख हो गया। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में जाने की इजाजत दी थी? इतने में अम्मी आ गई और वो परेशानी से पूछने लगी, क्या बात है जमान, क्यों खफा हो रही है? मैं खफा? क्या मुझे तो इसे जान से मार देना चाहिए। पूछो इससे कि ये किसके साथ थी। ये गाड़ियों में लिफ्ट लेती फिरती है। ये कहकर वो अपना सर पकड़े गुस्से में अपने कमरे में चले गए। मैंने अम्मी को भी वही बताया जो अब्बू से कहा था। अम्मी ने मुझे खूब लान तान की और उन्होंने भी मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया। शाम को अब्बू ने उनको हिदायत कर दी कि माहिन का कमरा बाकी बेटियों से अलग कर दो और मेरी बेटियों से इसको दूर रखो। कल कला को वो भी इसके नक्शे कदम पर चल पड़ी तो पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या कमी रह गई हमारी तरबियत में, इसीलिए इसने यूनिवर्सिटी जाने की रट लगा रखी थी। जिंदगी में पहली बार वो यूं मुझसे खफा हुए थे। मेरा कमरा तब्दील कर दिया गया। पहले हम 3 बड़ी बहनें एक ही कमरे में होती थी। अब छत पर एक अलहदा कमरे में मेरा सामान मुंतकिल हो गया। यूनिवर्सिटी जाना तो बंद हुआ ही था, मेरी बहनों को भी मेरे कमरे में आने की इजाजत न थी। वो मेरे कमरे में आए या मुझसे कोई बात करे। उफ, इतने प्यार करने वाले शख्स ने कितनी बड़ी सजा दी थी मुझे, और वो क्यों ना देते। मैंने उनके एतबार को और भरोसे को तोड़ा था। उनका शक करना भी बजा था। मुंह बोले भाई का किस्सा मेरे लिए हकीकत हो सकता था, देखने वालों के लिए नहीं। ऐ काश मुझे उसी वक्त ही घर में सबको बता देना था। समझ होती तो मैं ऐसी गलती क्यों करती। एहसास जुर्म ने मुझे अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया। माफी तो क्या मांगती, मुझ में तो अब्बू से सामना करने की अब हिम्मत ही ना रही थी। रेहान मेरे सुतेले वालिद का भतीजा था, जो मुझसे 2 डेढ़ साल बड़ा था। उसको बाप की वफात के बाद बड़े ताया ने ही लाड प्यार से पाला था। उसकी वालदा को उसके वालदैन ने दूसरी शादी कर दी थी, और बुरहान को भी उसके ददियाल वालों को ही दे दिया था। जब ताया का भी इंतकाल हो गया तो अब्बू उसको अपने साथ ले आए।
वो यहाँ कॉलेज में दाखिल करवा दिया। उसको आए 8-10 माह गुजर चुके थे। अब्बू ने बैठक से मुتصल कमरे में जो गेस्ट रूम के तौर पर बनवाया था उसे रहने को दे दिया। लड़कियों वाला घर था तो वो बहुत कम ही घर में आता, सिर्फ खाना खाने या कभी जब अब्बू बुलाते तो उनके कमरे में आ बैठता। ताहम वो मुझे कभी नहीं भाया। पहले रोज से ही अजीब नजरों से उसने मुझे देखा और मेरे दिल से उतर गया। कभी उसने बात करने की कोशिश भी की तो मैं उससे बात न करती। जब उसको इस अमर का इल्म हुआ कि मैंने यूनिवर्सिटी से वापसी पर किसी अजनबी नौजवान की गाड़ी में आई हूँ और तभी से अब्बू मुझसे नाराज है और वो सजा के तौर पर मेरा कमरा अलहदा कर दिया गया है, तो न जाने उसके दिल में क्या आई। एक रोज जब अम्मी अब्बू घर पर न थे तो उसने मौका पाकर छत पर आकर मेरे लिए दिलजोई करने की कोशिश की और मैंने उसको खूब बातें सुनाई कि आइंदा मेरे पास यहाँ आने की हिम्मत न करना। जब अम्मी अब्बू घर पर नहीं है तो तुम ऊपर क्यों आए हो? एक वो पहले ही मुझसे नाराज है, ऊपर से तुम मुझे यहाँ मरवाने आ गए हो। नाराज तो वो तुम्हारे करतूतों के सबब है। न तुम इश्क माशकी का खेल रचाती और ना वो नाराज होते। उसने जल भुनकर जवाब दिया। मुझे भी गुस्सा आया और मैंने चप्पल उठाकर उसे दे मारी और गुस्से में चिल्लाई, चले जाओ यहाँ से फौरन, निकलो मेरे कमरे से। वो कहने लगा, अच्छा तो ये बात है, गैरों पर इनायतें हैं और अपनों को धुतकार है। मालूम है कि चचा तुम्हारी शादी किससे करने वाले हैं? मेरे तो तन बदन में आग लग गई। दूसरी चप्पल भी उसको खींच मारी जो उसके मुंह पर जा लगी और वो गुस्से से भरना उठा। कमरे से निकलते हुए बोला कि आज तुमने जो मेरी बेइज्जती की है इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। वो सीढ़ियां उतरकर चला गया और हमारी मुलाजमा का कमरा भी छत पर मेरे कमरे के साथ ही था। लेकिन वो रात को सोने ही आती थी, दिन भर नीचे काम करती। उसने ये तमाशा नहीं देखा, वरना वो जरूर मुदाखलत करती। उस रोज मेरे वालिदैन एक पौधगी पे गए हुए थे। चंद घंटों बाद ही वो वापस आ गए। उनको इल्म न था कि पीछे क्या हुआ। अम्मी ऊपर आई और कहने लगी कि माहीन, आकर अपने अब्बू से माफी मांग लो, वो इतने बुरे नहीं है। लेकिन बाप होने के नाते तो जाहिर है ऐसी बातों पर गुस्सा किया जाता है, और तुमने भी तो हरकत ही ऐसी की है, अपनी सारी इज्जत उनकी नजरों में गंवा दी है। मैं तो पहले ही रिहान की वजह से अपसेट थी। अम्मी से कहा, अम्मी आप जाइए, मुझे पता चल गया है कि सुतेला बाप सुतेला ही होता है। अगर उनकी बेटी से ऐसी गलती हो जाती तो क्या वो उसको ऊपर छत वाले कमरे में यूं फेंक देते? मांग लूंगी मैं किसी वक्त उनसे माफी, मगर मुझे पता चल गया है कि सुतेले और सगे में क्या फर्क होता है। अभी आप जाए। अम्मी कहने लगी, एक तो तुमने ये सब किया है, ऊपर से बाप को दोष दे रही हो। शुक्र करो कि ऐसा बाप मिला है, उन्होंने तो कभी तुम्हें सुतेलापन दिखाया ही नहीं। तभी तो आज तुम ठंडे पानी में फूके मार रही हो। मेरा खराब मूड देखकर वो चली गई और मुझे एहसास है कि अम्मी की बातें बिल्कुल सच्ची थीं। मैं ही बस नादान थी। उस रात सभी घर वाले सो चुके थे, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने रात के इस पहर कमरे में आहट सुनी और डर गई कि कौन है। बेख्तियार मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि रिहान ने टार्च की रोशनी की और फिर बोला कि मैं हूँ। अगर तुम्हें अपनी इज्जत मतलूब है तो खामोश रह के मेरी बात सुनो। मैंने दिल में सोचा कि ये इंसान तो पक्का मुझे अब्बू से मरवाने पे तुला है। पहले वाली बात पे जो कसर रह गई थी वो अब ये पूरी करेगा। मैंने गुस्से में उससे कहा, ये कोई वक्त है बात करने का? दफा हो जाए यहाँ से। क्यों तुम मुझे मरवाना चाहते हो? प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से। मैं गुस्से के साथ खूब डरी हुई थी, कहीं अब्बू को खबर ना हो जाए। मैं तो पहले ही उनकी नजरों से गिर चुकी हूँ। एक बार फिर मैं बेगुनाही बदनाम हो जाऊंगी, और इस बार वो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। रेहान कहने लगा कि देखो माहिन, बहुत जरूरी बात है, तुमको सुनना होगी। चिच्चा जबान मेरी और तुम्हारी शादी का इरादा रखते हैं, इसलिए उन्होंने कल ताई को फोन किया कि उन्होंने मुझे माँ बनकर पाला है। ताई कल परसों तक आएगी। मैं तुमसे यही पूछने आया था कि तुम इस रिश्ते पर राजी हो। उस रोज भी मैं यही बात करना चाहता था, मगर तुमने बात सुनने की बजाय चप्पल मेरे मुंह पर दे मारी। मैंने दांत पीस कर कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या सुतेला बाप मुझको अब तुम्हारी वजह से बदकिरदार कहकर घर से निकाल दे? तुम्हें जो भी बात करनी थी, मगर आधी रात को यहाँ आने की क्या तुक है? वो आगे से कहने लगा, अपनी मर्जी तो तुम्हें मुझे अभी बतानी पड़ेगी, हाँ या ना। मैंने कहा, तुम जानबूझकर मुझे जज करने आए हो, बदला लेने आए हो? वो आगे से डटकर खड़ा हो गया। मैंने गुस्से से कहा, तुम ऐसे नहीं जाओगे, अभी मजा चखाती हूँ मैं तुम्हें। मैंने ये कहकर एक जोर की चीख मारी और चोर चोर का शोर मचा दिया। बराबर वाले कमरे से मुलाजमा दौड़ी आई और भागती हुई नीचे गई। मुलाजमा के जगाने से अब्बू घबरा कर ऊपर आए। उनके हाथ में पिस्तौल था। रेहान उनको आते देखकर मेरे कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ सर पर दौड़ा। अब्बू ने ललकार कर कहा, कौन हो, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। वो खौफ से ना रुका तो अब्बू ने गोलियां चला दी, जो रेहान के गुर्दे में पेवस्त हो गई और वो वहीं सीढ़ियों पर गिर गया। सारा घर शोर से जाग उठा।
ड्राइवर अपने क्वार्टर में इमरजेंसी लाइट लेकर आ गया और सीढ़ियों पर गिरे चोर को देखा। मगर वो चोर कहाँ था? वो तो बेवकूफ जज्बाती रिहान था, जो शायद मुझसे शादी करना चाहता था और इसी हमाकत के सबब हलाक हो गया। और अब्बू बेचारे भतीजे के कत्ल के इल्जाम में जेल चले गए। उन्होंने जेल में ही एक बारी बयान दिया कि भतीजे को जायदाद की खातिर कत्ल किया है। घर की बात थी और वो अपनी घर की इज्जत को कैसे रुसवा करते। उन्होंने मेरा नाम तक न आने दिया और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए सगे बाप से भी बढ़कर थे और मैंने उनके बारे में कितना गलत सोचा। पहले जब माँ बेवा हुई तो मैं अकेली उनके कंधों का बोझ थी। अब के जो उनका सुहाग 12 बरस के लिए जेल गया तो 5 लड़कियां उनके कंधे का बोझ थी। अम्मी ने काफी पैसा अब्बू के केस पे लगाया, यहाँ तक कि हम पे नौबत फाकों तक आ गई। सब रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। नाना नानी भी इंतकाल कर चुके थे। मैं सबसे बड़ी थी और मेरी शादी की उम्र निकली जा रही थी। अम्मी ने मेरा रिश्ता एक जगह तय कर दिया कि रिश्तेदारों में तो पहले ही बदनाम थी। मेरी शादी हो गई। लड़का 42 साल का था। मुझे बाद में पता चला कि जिस शख्स से मेरी शादी की गई है वो एक निहायत ही इबादत गुजार आदमी है, जिसकी जिंदगी में इबादत और दीनदारी के अलावा और तो जैसे कुछ भी नहीं है। वो रात को भी कमरे में ना आता और रात होते ही दूसरे कमरे में चला जाता और दरवाजा बंद कर लेता। मुझे कहता कि मुझे इबादत में डिस्टर्ब नहीं करना, इस तरह मैं ज्यादा सुकून से इबादत कर सकता हूँ। मैं हैरान रह जाती कि ये किस किस्म का शोहर मुझे मिला है। मेरी माँ ने इस रिश्ते में ज्यादा छानबीन भी ना की थी। पड़ोसन ने लड़के के किरदार के खूब गुण गाए थे कि नेक है और 5 वक्त का नमाजी है। मैं भी अपनी माँ की परेशानियों को देखते हुए समझौता करने पर मजबूर थी, क्योंकि अभी मेरी 4 बहनों का बोझ उनके कंधों पर था। शादी को 15 दिन गुजर गए, लेकिन मुझे उनके कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। पहले पहल तो मुझे शदीद गुस्सा आता। मुझे लगता कि उसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि वो अपनी इबादत और दीनदारी में मगन रहता है और मेरे साथ भी बहुत अच्छे सलूक से पेश आता। मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखता तो मुझे भी वो इतना बुरा ना लगता। वो जिक्र में मसरूफ रहता और उसका रवैया दूसरों से भी बहुत अच्छा था। मेरी माँ का ख्याल रखता और उनसे कहा, जब तक माहीन के अब्बू जेल से नहीं आ जाते मैं आपका सहारा बनूंगा। यूँ उसने हमारे घर का बोझ भी अपने कंधे पर ले लिया। मुझे अपने दिल में उसके लिए बहुत इज्जत महसूस होने लगी और मैं काफ़ी मुतमईन थी। मैं एक ऐसे निहायत और पाकीज़ा शख्स के तौर पर देखने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मुझ में भी इबादत का शौक पैदा होने लगा। एक रोज़ मैंने सोचा कि मैं भी उसके साथ इबादत में जाकर शामिल हो जाऊं। मगर ये अजीब बात थी कि वो शख्स रात को दूसरे कमरे में जाकर इबादत करता था और दरवाज़ा बंद कर लेता था और मुझे भी रात में उसे डिस्टर्ब ना करने की हिदायत थी। इसी वजह से मैं भी कभी उसके करीब जाने की हिम्मत ही ना कर पाई। खुदा की करनी खिलाफे मामूल एक रोज़ वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गया। मैं जब रात में उठकर पानी पीने की घर से बाहर आई तो देखा दरवाज़ा बंद तो था, मगर कुंडी नहीं लगी थी। मैंने यूं ही उन्हें देखने की घर से कि दरवाज़ा तो खुला ही है, शायद बाहर गए होंगे या वॉशरूम में होंगे। मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। ये मंजर तसव्वुरात से भी ज़्यादा खौफनाक था। मेरे शोहर, जो हर रात इबादत गुजार बनकर इबादत में मसरूफ़ रहते थे, इस वक्त किसी इबादत में मशगूल नहीं थे, बल्कि किसी शैतानी अमल में मसरूफ़ थे। कमरे में अजीब व गरीब तावीज़ और किताबें थी और वो अपनी ज़बान से कुछ पढ़ रहे थे, शायद कि कोई शैतानी अमल कर रहे थे। उन्होंने जब मुड़कर मुझे देखा तो शदीद गुस्से में आ गए और मैं तो उनकी ये हालत देखकर ही खौफजदा हो गई थी। और उस रोज़ उस शख्स ने मुझे इस बात पर खूब मारा कि क्यों तुमने मेरी इजाज़त के बगैर आखिर इस कमरे में आई। अब ये उसका रोज़ का मामूल बन गया था, जैसे वो अपनी असलियत पर आ गया था। मेरा अब उस शख्स के साथ गुजारा ना था, जो मजहबी बनकर इतना घिनौना काम कर रहा था। मैंने उसे तलाक ले ली और माँ के पास आ गई। शायद कि मेरी किस्मत में भी यही लिखा था। उससे छोटी 3 बहनों की शादियाँ हो चुकी थी। मैंने तलाक के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की और अपनी माँ का सहारा बनी। फिर भी मैं बयान नहीं कर सकती कि अब्बू की रिहाई तक हमने ये वक्त कैसे काटा। अल्लाह से दुआ है कि बस तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सिद्रा की कहानियों को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ कल फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।